Assalamu alaikum everyone. Please let me know, am I audible to all of you? Yes, you're audible. Okay, we'll be starting by 9:10. We'll be waiting for 1 to 2 minutes. Okay. Assalamu alaikum sir. Am I audible to you as well? वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल ठीक है sir. We are starting. Okay, so Assalamu alaikum everyone. Ifra Zahid here, Vice President IAS. I welcome you all to the first research webinar being conducted by Research and Academic Society Sahiwal. First of all, I would like to thank our worthy speaker for today, Sir Dr. Muhammad Wasim, HOD Pulmonology Department SLMC and Research Advisor SLMC. Inshallah, the session would be productive and helpful for all of us. Starting off with a recitation of Holy Quran, I would like to call Fatma Iqbal from third year. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك Okay. Jazakallah khair. So the seminar we are going to conduct today is on the topic of how to choose your research topic and synopsis writing. Before inviting our worthy speaker, I would like to give a brief overview of what research actually is and why is it so important for you to inculcate research in your priority list as a medical student. Research is the cornerstone of knowledge and innovation that guides us through solution to the unanswered questions and complex problems. It leads us to state facts after thorough investigation, experiment, and critical analysis. Furthermore, it encourages collaboration and exchange of ideas that facilitates a knowledge-based ecosystem. In context of Pakistan, why is research so important yet neglected among medical students in Pakistan? Research might seem boring to you in the initial stages, but it is one of the most motivating and rewarding tasks when you actually start doing it. Being medical student, it is very important for you to know that research can promote evidence-based medicine, which can help revolutionize our health system in many positive aspects. Moreover, your contribution to research, whenever it is being used for the welfare of mankind, can actually act as a sadqa jariya for you. And last but not the least, research is crucial to boost your CV as a doctor. In the recent years, research has gained so much importance that in fact you need publications by your side at every step of your career as a doctor. Either you wish to pursue your post graduation within Pakistan or outside the country, authentic publications are going to help you stand out.
Even if you are applying for jobs or match in residency, a person having authentic publications in high-end journals is always preferred over the others. With that being said, I would like to invite our worthy speaker for today, Dr. Mohammed Wasim, to share his presentation. Sir, over to you. Thank you very much, Ifra. And it was a very nice introduction. And first of all, Assalamu alaikum to all the participants. And it is always a very good experience to meet so many young brains. So today's topic will be interactive, and I will try my best that we all learn something out of this topic. So I will start sharing the slides, and after that we will proceed. Yes, sir. I hope you can all see the slide share. Yes, sir, the slides are visible. Okay. So we start formally. So first question is कि what is research? और ये word बहुत ज़्यादा यूज हुआ, अभी भी हमने कन्वर्सेशन में यूज किया. तो रिसर्च बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टेमिक तरीके से कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, और उस डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं. एंड देन वी ट्राई टू इंटरप्रेट दैट डाटा, और उस डाटा से हम कोई ऐसा रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं जिससे आगे कोई ना कोई हमें बेनिफिट हो. अब वो बेनिफिट हमें भी होना चाहिए, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट होना चाहिए. हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो हमारे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं. तो हमारी जो रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च, उसका उनको भी फायदा होना चाहिए. तो अगेन मैं इस चीज को रिवाइज करूंगा कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. फिर उस डाटा को इंटरप्रेट करना है, उसमें से रिजल्ट्स निकालने हैं, और वो रिजल्ट्स निकाल के हमने इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि उससे पेशेंट को कोई फायदा पहुंच सके और ओवरऑल सोसाइटी को कोई फायदा पहुंच सके. रिसर्च का जो वैल्यू है या अहमियत है, वो पिछले 2 साल में काफी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में वाजे हुई. आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोविड की पैंडेमिक आई, और इनिशियल डेज में हमें उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था, और हम लोग यही सोच रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए. तो उस डिजीज को जज करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशंस बनाने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च का सहारा लेना पड़ा. और इस चीज की बड़ी कमी महसूस हुई कि डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान के अंदर ट्रीटमेंट के बारे में कोई रिसर्च होती. जब तक रिसर्च बाहर के कंट्रीज में नहीं हुई, तब तक हम इस काबिल नहीं हुए कि हम पेशेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें. और पता नहीं जब तक उनकी रिसर्च हुई, हमने बेशुमार पेशेंट है ना उनको लूज किया, वो उनकी डेथ हो गई या वो सिवियरली क्रिपल्ड हो गए. तो एट दैट टाइम हमें ये बड़ा ख्याल आया कि अगर हम लोग भी एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री रिसर्च में आगे होते तो मे बी हम बहुत सारे पेशेंट्स, उनकी जान बचा सकते थे. तो रिसर्च इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने यहाँ एक रिसर्च का कल्चर डेवलप करें. जैसे आप लोगों ने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया है, और आप लोग ये रिसर्च सीख रहे हैं, और डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला इसको आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे. तो होपफुली एट द एंड ऑफ द डे एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर कोई डिजीज है या पुरानी डिजीजेस के जो हिडन एस्पेक्ट है उनके बारे में हम ज्यादा जान सकें. तो ये फर्स्ट स्लाइड है, इट इज अबाउट द रिसर्च प्रोसेस के रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग जो होती है, दिस इज द रिसर्च आइडिया. कि सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि आपने किस चीज के बारे में रिसर्च करनी है, और वो रिसर्च आइडिया हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. लाइक इन द पेंडेमिक ऑफ कोविड, अगर आपने कोविड के बारे में सोचा कि मैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च करूंगा, तो दिस इज एन आइडिया. अभी आजकल डेंगू फीवर ज्यादा कॉमन है, आप डेंगू फीवर की मैनेजमेंट के बारे में कोई रिसर्च करना चाहें तो दिस इज एन रिसर्च आइडिया. रिसर्च आइडिया का एक खास करेक्टरिस्टिक होता है कि इसको नोवल होना चाहिए. मतलब कि आपसे पहले मिनिमम लोगों ने इस बारे में सोचा हो, या जिस एस्पेक्ट से आप सोच रहे हैं उस एस्पेक्ट में पहले किसी ने ना सोचा हो. तो इस चीज को जज करने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है.
लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आप कोई भी सिलेक्टेड डिजीज या टॉपिक लाइक कोविड, डेंगू, उसके बारे में तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज से चेक करेंगे कि उनके बारे में क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। और मिसाल के तौर पे अगर आप डेंगू फीवर की मैनेजमेंट या उसकी वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा, तो आप पहले लिटरेचर में चेक करेंगे कि क्या उसके बारे में कोई पहले रिसर्च मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं कि मैं फलां एक ड्रग है वो डेंगू के पेशेंट को दूंगा और उससे डेंगू का पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा, तो आप पहले लिटरेचर में देखेंगे कि उसके बारे में पहले तो नहीं ट्रायल हुआ। तो इफ देर इज नो ट्रायल तो फिर समझ लें कि आपका रिसर्च आइडिया एक नोवल आइडिया है और आप इसके बारे में फर्दर असेस कर सकते हैं, फर्दर उसमें से रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। वंस यू आर डन विद योर रिसर्च आइडिया, आपको पता लग गया कि मैंने डेंगू या कोविड की ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च करनी है, तो फिर आपने रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं। और रिसर्च क्वेश्चन आपने इस तरीके से बनाने हैं कि आप क्लियर हों उस चीज में, अपने माइंड में भी और पढ़ने वाले के माइंड में भी। मिसाल के तौर पे अगर आप कोविड को ट्रीट करना चाह रहे हैं और आपके जहन में एक चीज आती है कि फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक वो कोविड के पेशेंट में उसका ट्रीटमेंट में उसका बेनिफिशियल रोल है, तो ये आप एक क्लियर कट आपने एक ड्रग सोची और फिर आपने सोचा कि इस ड्रग का कोविड के पेशेंट पे बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा। ये एक आपने एक हाइपोथेसिस सोच लिया, एक आपके माइंड में क्वेश्चन बन गया। अब आप ये देखेंगे कि लिटरेचर के अंदर इस बारे में पहले रिसर्च हुई है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलोन का रोल डिटरमन हुआ है। अगर पहले डिटरमन हुआ है तो फिर आप कुछ और सोचिए, क्योंकि उस बारे में पहले ही काम हो चुका है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर Excuse me, sir. मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पे सारा काम किसी Excuse me, डेवलप्ड sir. कंट्री में हुआ है तो आप पाकिस्तान में उसको रिपीट कर सकते हैं। Excuse me, तो sir. इस तरह, यस, Slides are not visible, sir. ओके, नाउ इट इज विजिबल। Yes, sir. The अब slides are विजिबल visible है। now. जी, अब visible. ओके, तो हम थे कि हम एक आइडिया सोचेंगे और उसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें से थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम की और रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करेंगे। और वो कुछ इस किस्म के हो सकते हैं कि फलान ड्रग जैसे फ्लोरोक्विनोलोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो कोविड की ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल हैं, पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि हम जो रिसर्च क्वेश्चन हमने डेवलप कर ली है उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है। अगर हमने ये सोचा कि हम ड्रग किसी पेशेंट को देंगे और उससे फायदा होगा, तो दिस इज ए क्लिनिकल ट्रायल। और इस ट्रायल में हम डेफिनेटली 2 ग्रुप्स बनाएंगे, एक ग्रुप में हम मेडिसिन देंगे और दूसरे में नहीं देंगे। तो इस तरह हम एक ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल को डेवलप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ड्रग, एक ग्रुप को ड्रग देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, और उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे कि दोनों ग्रुप्स के पेशेंट में रिकवरी कितनी जल्दी हो रही है, दोनों में डेथ रेट कितना है, कॉम्प्लिकेशन रेट कितना है। उसके बाद फिर हम डेटा को एनालाइज करेंगे और अगर हमें लगता है कि जो हमने इंटरवेंशन की है उस ग्रुप के अंदर पेशेंट जल्दी रिकवर हो रहे हैं और डेथ कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या कोई और ड्रग वो कोविड पेशेंट्स के लिए अच्छी है, तो वो आपका हाइपोथेसिस वो ट्रू साबित होगा। इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, आप एक हाइपोथेसिस बना लें कि जिन पेशेंट्स के अंदर एक्सरे के अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, उन पेशेंट्स के अंदर कोविड में डेथ ज्यादा हुई। ये आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया। तो इसको चेक करने का तरीका यही है कि जिन पेशेंट्स की डेथ हुई थी उन पेशेंट्स के अंदर आप एक्सरे देखेंगे कि उनमें कितनी इन्वॉल्वमेंट हुई थी लंग पैरेन्काइमा की, और साथ में आप
जो पेशेंट सरवाइव कर गए उनके एक्सरेज को देख लेंगे। तो इस तरह आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस आइडियाज, वेरियस थॉट प्रोसेसेस और वेरियस अप्रोचेस टू रीच ए कंक्लूजन। आप उसकी मुख्तलिफ टाइप की स्टडी वो कर सकते हैं, बट इट ऑल स्टार्ट्स विद डेवलपिंग ए रिसर्च आइडिया एंड रिसर्च क्वेश्चन, और इन द एंड आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और उस कंक्लूजन का क्या फायदा होता है कि आप उस कंक्लूजन को जनरलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तान में लाइक 50 पेशेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उनको एक ड्रग दी और उसका फायदा हुआ, तो आप अपनी रिकमेंडेशंस को पब्लिश कर सकते हैं और पूरी दुनिया में जहां जहां वो पढ़ी जाएगी उन्हें अंदाजा होगा कि ये एक नई ड्रग का एक्सपेरिमेंट हुआ था और इससे पेशेंट इम्प्रूव हुए हैं, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जस्ट लाइक कोविड-19 के जब ब्रिटेन में डेक्सामेथासोन का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कोविड पेशेंट पे, और उसका अच्छा रिजल्ट आया इन ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस को पब्लिश किया इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में यूज होना शुरू कर दिया, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया को फायदा हुआ। तो आई होप कि आपको रिसर्च प्रोसेस का ये जो साइकिल है इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग वो आ गई होगी। इसमें जो दो चीजें मैं आपको चाहूंगा कि आप याद रखें, दैट इज कि आपने रिसर्च आइडिया आपका नॉवल होना चाहिए और उस पर पहले मिनिमम वर्क होना चाहिए ताकि आपका वर्क यूनिक हो, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आपने केयरफुल तरीके से अपनी स्टडी का डिजाइन देखना है कि आप क्रॉस सेक्शनल करना चाहते हैं, आप रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना चाहते हैं, या आप कोई और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज करना चाहते हैं। ये बात बता दूं कि वर्ल्ड ओवर में अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की वैल्यू कम होती जा रही है और रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स और ऐसे ट्रायल्स के जिनके अंदर न्यू ड्रग्स की आप टेस्टिंग करें उनकी वैल्यू वो ज्यादा होती जा रही है। सो अब अगली अगर हम स्लाइड पे आए तो हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ जो रिसर्च का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या आप चीजें सोचेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो आप एक टाइटल देखेंगे। टाइटल इज ए रिफाइंड आइडिया, जो आपने सोचा तो उसका एक रिफाइंड आइडिया है। मिसाल के तौर पे जो पहले अभी हमने मिसाल डिस्कस की है, तो उसमें हमने सोचा कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन देने से कोविड-19 के पेशेंट्स वो इम्प्रूव होंगे, ये हमारा हाइपोथेसिस था। तो हम इसका टाइटल इस तरह बना सकते हैं कि रोल ऑफ मॉक्सिफ्लॉक्सासिन इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो ये एक अच्छा रिफाइंड टाइटल बन जाएगा। उसके बाद हमने उस टॉपिक का बैकग्राउंड देखना है और हमने लिटरेचर रिव्यू करना है और मुख्तलिफ किस्म की जो रिसर्च है कोविड-19 के बारे में, और उसमें ये देखना है कि एंटीबायोटिक्स का क्या रोल रहा है। और अगर हमें पहले से ही एडिक्वेट रिसर्च मिल जाती है तो हम अपना टाइटल चेंज करेंगे और कुछ और सोचेंगे, लेकिन अगर हमें एडिक्वेट डाटा नहीं मिलता तो देन वी कैन प्रोसीड विद द सेम आइडिया और टाइटल। उसके बाद फिर हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा, और वो रिसर्च क्वेश्चन ये है कि क्या एंटीबायोटिक मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलोन देने से कोविड पेशेंट्स उनकी इंप्रूवमेंट होती है। ये एक रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा, और इसका फिर हमें एविडेंस तलाश करना है। और फिर हम इसका बेस्ट तरीका क्या है वो हम सोचेंगे कि दो पेशेंट्स के दो ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप को ड्रग देंगे दूसरे को नहीं देंगे, तो ये हमारा रिसर्च मेथड हो जाएगा। और फिर हम एक वर्किंग प्लान बना लेंगे कि हमने कितने पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, कितनी देर के अंदर करना है, पेशेंट्स के कौन सा एज और जेंडर के ग्रुप लेने हैं, ताकि हमारी जो स्टडी है उसमें कोई बायस ना रहे। और एंड द एंड हमने अपने जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो हमने रेफरेंसेस हैं उनको हमने यूज करना है। तो ये हमारा एक हो जाएगा फ्लो मेथड टुवर्ड्स द रीचिंग द कंक्लूजन। तो जब भी आप एक रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करें तो आप ये जरूर सोचें कि रिसर्च इज नॉट फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट ओनली। नो डाउट इट इज हेल्पफुल इन योर पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी सीवी में भी होगी, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि जो रिसर्च के कंज्यूमर हैं, यानी आपकी सोसाइटी है, आपके कोलीग्स हैं और पेशेंट्स हैं, उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो हमारा एक प्लेज है बीइंग डॉक्टर के हमने सोसाइटी को इम्प्रूव करना है तो वो इम्प्रूव हो सके।
तो उसके बाद वही चीज आ जाती है कि जब भी आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना है तो आपको उस चीज के बारे तमाम एस्पेक्ट का पता होना चाहिए, उस डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टिगेशंस, या जो भी आप प्रॉब्लम सोच रहे हैं उसके तमाम इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। और ये चीज तभी मुमकिन है अगर आपने कम से कम उसके बारे में 50-60 पेपर्स को स्टडी किया हुआ हो। इसमें एक हिडन थोड़ा सा बात ये है कि अगर हम अलग अलग पेपर सर्च करने की बजाय अगर हम मेटा एनालिसिस या लिटरेचर रिव्यू देख लें तो हमें शॉर्ट टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि मेटा एनालिसिस और लिटरेचर रिव्यू वाले जो पेपर होते हैं इनके अंदर एक टाइम में 40-40, 50-50 पेपर्स को समराइज किया होता है और उनके डाटा को कलेक्ट करके इंटरप्रेट किया होता है। तो बजाय इंडिविजुअल पेपर्स देखने के अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में मेटा एनालिसिस वगैरह देख लें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मेटा एनालिसिस एक ऐसा पेपर होता है कि जिसमें मल्टीपल पेपर्स को कलेक्ट करके उनके डाटा को एनालाइज किया जाता है। ये एक डायग्राम है, फ्लो शीट, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या है रिसर्च क्वेश्चन बनाने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये प्रॉब्लम या आपके माइंड में जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है अबाउट सम डिजीज, अबाउट सम क्वेरी, तो आप उसको देखेंगे। और सेकंड नंबर पे आप लिटरेचर रिव्यू देखेंगे। इन दोनों को करने के बाद फिर आप एक आइडिया सोचेंगे स्टडी का, और फिर स्टडी क्वेश्चन जब आपने ड्राफ्ट करना है तो उसमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हु विल बी स्टडीड, कि आपने किस ग्रुप में करना है, किस पेशेंट्स का ग्रुप लेना है, कम्युनिटी के अंदर कोई ग्रुप लेना है। सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि व्हाट दे विल बी एक्सपोज टू, यानी आप इंटरवेंशन क्या करना चाह रहे हैं, आप उनको कोई ड्रग देंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या कोई और प्रोसेस करेंगे। और थर्ड आपने ये देखना है कि हाउ विल यू मेजर आउटकम, कि अगर आपने जो इंटरवेंशन किया उसके बाद रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, और क्या वो रिजल्ट जो आप आउटकम आप निकाल रहे हैं वो दोनों ग्रुप्स में बराबर है या डिफरेंट है। तो ये तीन फैक्टर्स आपने स्टडी क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते हुए आपके माइंड में होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल ये है कि वही पुरानी एग्जांपल जो शुरू से लेके चल रहा हूँ कि यू वांट टू गिव ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक टू ए पेशेंट। तो अब आप पहले ये देख लें कि पेशेंट किस डिजीज के होने चाहिए, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, और उनकी एथनिसिटी क्या होनी चाहिए, उनकी जेंडर कौन सी होनी चाहिए, और ये दोनों ग्रुप्स में बराबर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे व्हाट दे विल बी एक्सपोज टू, कि पेशेंट को आप कौन सी ड्रग देंगे। और ये याद रखिएगा कि अगर पेशेंट को मल्टीपल ड्रग वो रिसीव कर रहा है तो दोनों ग्रुप्स के अंदर पेशेंट्स को वो मल्टीपल ड्रग मिलनी चाहिए, और एक ग्रुप में जो आप ड्रग ट्राई कर रहे हैं वो इजाफी होनी चाहिए। यानी अगर आप दोनों ग्रुप्स में पेशेंट को, ऐसे पेशेंट होने चाहिए जिनको एक ही तरह की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चाहिए हो, उनको एक ही तरह की स्टीरॉयड की डोज मिल रही हो, और एक ही तरह की और ट्रीटमेंट मिल रही हो, और आपने एक्स्ट्रा उसमें एंटीबायोटिक ऐड की हो। एंड हाउ विल यू मेजर आउटकम, इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप्स में आप देखेंगे कि कितना पेशेंट का हॉस्पिटल से कितनी जल्दी वो फ्री होता है, उसकी डिजीज की सिम्टम्स कितनी जल्दी खत्म होती हैं, और डेथ रेट कितना है। और जो आपका फाइनल स्टडी क्वेश्चन है उसमें आप जब डिटरमिन करेंगे तो आप वहाँ सैंपल साइज भी कैलकुलेट करेंगे, और दो ऐसे मामलात हैं जिनको आप जरूर जहन में लाएंगे, वो है बजट और फिजिबिलिटी। मिसाल के तौर पे अगर आप पेशेंट को कोई ड्रग देना चाह रहे हैं तो आप ये देख लें कि पेशेंट किसी भी सूरत में उसका एक्सपेंडिचर नहीं बियर करेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर कि वो उस ड्रग का इंतजाम करे जो एक पेशेंट को लगनी है। सिमिलरली फिजिबिलिटी भी, अब मिसाल के तौर पे कोई डिजीज पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और आप सोचें कि मैं उस पर रिसर्च करूं तो वो फिजिबल नहीं है। आप हमेशा उस डिजीज पे या उस प्रॉब्लम पे रिसर्च करेंगे जिसका कम्युनिटी ग्रुप या पेशेंट वो आपके पास मौजूद हो। तो जब आप रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो आपने क्या क्या क्वेश्चन कंसिडर करनी है, ये कुछ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हु से मुराद क्या, आपने कौन सा ग्रुप लेना है, उसमें जेंडर कौन सा हो, उसमें एज कौन सी हो, एथनिसिटी कौन सी हो।
टू व्हाट एक्सटेंट कि आपने उनको किस हद तक इन्वॉल्व करना है, यानी आपने उनको सिंगल ड्रग का एक्सपोजर देना है या मल्टीपल ड्रग का एक्सपोजर देना है, आपने एक एस्पेक्ट जज करना है या मल्टीपल एस्पेक्ट जज करने हैं। व्हेन का मतलब ये है कि आप कितने टाइम पीरियड में अपनी इंटरवेंशन करेंगे, कब करेंगे और कब खत्म करेंगे। वेयर का मतलब वही फिजिबिलिटी आ गई कि आप करेंगे किधर, कि ये पेशेंट या आपके करीब होने चाहिए, आपकी कम्युनिटी में होने चाहिए, आपके हॉस्पिटल में होने चाहिए। और वाई का मतलब ये है कि आप जो स्टडी क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या आपके अलावा भी लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे। डेफिनेटली अगर आप किसी बर्निंग इशू के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो लोग उसको शौक से पढ़ेंगे। जस्ट लाइक आजकल डेंगू फीवर कॉमन है, तो अगर आप उसके बारे में किसी नई ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे तो जो लोग डेंगू को ट्रीट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी और वो इस सिलसिले में डेफिनेटली आपकी रिसर्च से गाइडेंस लेंगे। तो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन उसकी क्या क्या खूबियां हो सकती हैं। एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले आप देखें कि इट शुड बी फीजिबल, ये आपके कोई मुश्किल ना पड़े उसके बारे उसको सॉल्व करने के बारे में। पेशेंट आपके सराउंडिंग में होने चाहिए या आपके करीब होने चाहिए। और रिसर्च क्वेश्चन ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब आप लिटरेचर रिव्यू करें, कोशिश करें ऐसा रिसर्च क्वेश्चन हो जो आपकी सराउंडिंग में पहले कभी भी नहीं हुआ और इंटरनेशनली भी उसके बारे में डाटा कम हो। याद रखें, जितना ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन होगा आपकी रिसर्च की रीच भी उतनी ज्यादा होगी। रेलेवेंट रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट से मुराद ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड के मुतालिक रिसर्च आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट होगी बजाय इसके कि आप किसी और चीज के बारे में रिसर्च करें। जो रिसर्च क्वेश्चन है इट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड आर्ग्यूएबल। मतलब आपका रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए विच शुड जिसका आंसर ऐसा ना हो जो बगैर रिसर्च के भी आपको लग रहा हो कि ये ऐसा ही है, यानी वो ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ जवाब तलाश करने में एफर्ट करनी पड़े। रिसर्चेबल हो, मतलब क्वेश्चन जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा हो कि जिसके बारे में आप कोई विदाउट एनी डिफिकल्टी डेटा भी कलेक्ट कर सकें। फोकस्ड होना चाहिए, यानी आपका रिसर्च क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें एक ही वक्त में चार चार किस्म के क्वेश्चंस निकल रहे हों। एक चीज ले लें और उसी के बारे में फोकस रिसर्च कर लें और फिर उसी के बारे में आप रिजल्ट निकालें। और स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इट शुड बी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डिजीज और टॉपिक, यानी एक चीज और एक ही डिजीज के बारे में होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिसर्च लिमिटेड टू ए सिंगल प्रॉब्लम, ये हमने स्पेसिफिसिटी में पढ़ लिया था। शुड बी एबल टू फाइंड द आंसर यूजिंग डाटा कलेक्शन, के फिजिबल भी होना चाहिए। रिजॉल्वेबल विद इन द टाइम लिमिट एंड अंडर रिस्ट्रिक्शंस, यानी आपको पक्का पता हो कि मैं इतने मंथ्स के अंदर डाटा कलेक्ट भी कर लूंगा और उसको इंटरप्रेट भी कर लूंगा। कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड रिजल्ट्स देने चाहिए। शुड बी रेलेवेंट एंड रियलिस्टिक एंड रिफ्लेक्ट्स योर चोजन फील्ड ऑफ स्टडी, यानी आपसे मुतल्लिक होना चाहिए और जो आप डिजीज स्टडी करना चाह रहे हैं या फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं उस आपका रिसर्च क्वेश्चन भी उसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट ए रिसर्च क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि चूज ए ब्रॉड टॉपिक दैट द टारगेट ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन, कि एक बड़ा टॉपिक लें और जो जिन लोगों का आपको लगता है कि वो इसको पढ़ेंगे वो उसमें इंटरेस्टेड भी होने चाहिए। उसके बाद रिसर्च योर टॉपिक का लिटिल बिट, मतलब आप लिटरेचर रिव्यू करें, देखें उस पर कितना का काम हुआ है और वही बात के काम उस पर कम से कम होना चाहिए, स्पेशली आपके एरिया में तो बिल्कुल कोई काम ना हो तो ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद ये जहन में रखें कि आपकी रिसर्च का फायदा किसको होगा। चौथे नंबर पर ये है आस्क द राइट क्वेश्चंस, मतलब जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो राइट होना चाहिए। उसकी फॉर्मुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका मतलब जो रीडर है उसको अंदाजा हो जाए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। एग्जामिन द रिसर्च क्वेश्चन, कि आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करें एंड ब्रेनस्टॉर्म द पॉसिबल आउटकम, और पॉसिबल आउटकम भी सोच लें। यानी आप एक डिजीज के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग आजमाना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में हो कि ये ड्रग टू वे प्रोसेस कर सकती है, यानी ये मरीज को बेहतर भी कर सकती है, हो सकता है इसका बिल्कुल कोई इम्पैक्ट ना हो और हो सकता है कि इससे डिजीज कंडीशन वो खराब हो। तो आपको ये मल्टीपल चीजें माइंड में रख के फिर रिसर्च क्वेश्चन वो बनाना पड़ता है।
ये कुछ स्टेप्स हैं टू गाइड यू इन चूजिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट को देखना है, आप किस चीज के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करना है, फिर उसके बाद आपने सोचना है कि आपने कौन सा एस्पेक्ट ऐसा लेना है जिसके ऊपर पहले रिसर्च नहीं हुई। फिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर और आपका हॉस्पिटल के अंदर एक्सेस मुश्किल है, या आप एक नए नए इलाके में आए हैं और आप कम्युनिटी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो जरा मुश्किल हो जाएगी। डिस्कस विद मेंटोर्स एंड पीयर्स, जो आपके टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, या आपके और लोग हैं, उनसे एक दफा डिस्कस कर लें। हो सकता है लिटरेचर रिव्यू में आप समझ रहे हो कि इस टॉपिक पे पहले कभी रिसर्च नहीं हुई, और हो सकता है कि उन लोगों को पता हो कि इस सिलसिले में पहले भी रिसर्च हो चुकी है और वो आपको बता दें कि चंद दिन पहले ही ये टॉपिक पब्लिश हो चुका है। रिफाइन एंड नैरो डाउन, कोशिश करें कि एक वक्त में एक चीज के बारे में सोचें और उसी के इम्पैक्ट पे गौर करें। कंसिडर द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पर भी गौर करें। अब एक डिजीज है जिसके बारे में मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि सस्ते भी हैं, रिलायबल भी हैं, तो हो सकता है कि उस डिजीज के बारे में फर्दर अगर आप रिसर्च करें तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो। ताहम एक ऐसी डिजीज जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो उसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी। प्रायोरिटाइज एंड चूज, आपके पास मल्टीपल रिसर्च क्वेश्चन हो जाएं तो उनमें से वो वाला चूज करें जिसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जो सबसे ज्यादा शेयर होगी, सबसे पहले उसको कंसिडर करके उस पर अपना वक्त लगाएं। अब हम अगले जो इसका है कि एक रिसर्च प्रपोजल, उसको हम गुड रिसर्च प्रपोजल उसको किस तरह लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसके स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन एंड सिलेक्शन ऑफ ए टॉपिक। उसके बाद अगले स्टेप पे, जी जी, पर ये जूम के जो फ्री वर्जन में हमारे पास जस्ट 40 मिनट्स की मीटिंग अलाउड होती है, तो हम इसको एंड कर रीज्वाइन कर लेते हैं ताकि हमारा सेशन कंटिन्यू रह सके। बिल्कुल ठीक है, आप कर लें।